Now, as we have seen the characteristic, based on that, we have decided that we can very well can explain the merits and demerits of each one of them. Let's start with the range. What are the merits of range? It is easy to understand, it is easy to calculate, and simple to understand. Yes, very much range is the easiest one. Second, no special knowledge is required while calculating the range. No one is asking you to learn certain formula, under root fd square, under root fd square, under root ft upon n, something, something, blah, blah. No, nothing. Simple, highest value minus lowest value. So it's no special knowledge. No special knowledge doesn't mean that any science or math. No special knowledge means that is basically the formula. Third, it takes the least time for computation. Obviously, if the data is huge, in case if you have been given the list of the data where there are about 40, 50, 60, 100 entries are there, then in that case also it's easy to understand, easy to find the lowest and the highest value. If it is in Excel, then it's the easiest way. सबसे छोटा सबसे बड़ा निकालना है, that's it. हमको उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं लगानी. So it obviously takes the least time for the computation. One more merit, it provides a broad picture of the data at a glance. That means, broad picture means थोड़ा सा in depth knowledge नहीं देता वो dispersion का, but एक idea दे देता है कि इस क्लास में marks कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं. किसी भी क्लास में अगर मार्क्स दे रखे 60 स्टूडेंट्स के, उसमें सबसे कम मार्क्स आए आउट ऑफ 100 मान लीजिए 48, और किसी के बहुत हाईएस्ट आए 98, तो हम सारे स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स जानने के बीच हमें एक ब्रॉड पिक्चर मिल जाता है कि स्टूडेंट्स में इस क्लास में हर स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स है उसके हर लेवल है 48 से 98 तक. मीन्स वीक स्टूडेंट्स भी हैं कुछ और बहुत इंटेलिजेंट 98 मार्क्स स्कोरर्स भी हैं. तो हमें एक ब्रॉड पिक्चर मिल जाता है कि दिस क्लास हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस. डीमेरिट्स क्या रेंज की? इट इज अ crude measure because it is only based on the two extreme values. Yes, it is not very good measure of dispersion. क्यों? क्योंकि dispersion का बहुत अच्छा measure वही कहलाता है जो सारी observations पे based हो. ये सारी observations पे based नहीं होता. ये सिर्फ extreme values को importance देता है, उसी को calculation में लेते हैं, rest observations को ignore करते हैं, वो भले उनकी values कितनी भी हो. Second demerit, it cannot be calculated in the case of open-ended series. When I say open-ended series, in that case, open-ended series are those series where you do not get the lower limit in the first class interval and you don't get the highest limit in the last class interval. For example, let me give you one example here. If I have given you the class interval like this, it's a less than 20 marks, like this. Then I have given you 20 to 30 marks, 30 to 40 marks class interval. I've given you 40 to 50 marks. Then later I have given you more than 50 marks. This type of data where the class interval is this. In front of it, obviously, frequency will be there. Less than 20 marks, somewhere there are 5 students. 20 to 30, there are 2. 30 to 40, there are 4. 40 to 50, there are 5 students. More than 50, there are 7 students. Look this data. How you going to read it? 20 से कम कितने स्टूडेंट्स को आए? 5 स्टूडेंट्स को आए इस क्लास में. लेकिन हमें पता नहीं कि 20 से कम जो 5 स्टूडेंट्स को आए हैं उनके एक्चुअल मार्क्स कौन से क्लास इंटरवल में लाया करते हैं? 10 to 20 में, 5 to 20 में, 5 to 10 में. वी डोंट नो. तो ये जो हमारा एंड है इस क्लास इंटरवल का, इसे कहते हैं ओपन. इसी तरह से ये भी ओपन है. 7 स्टूडेंट्स हैं, दे हैव गॉट मार्क्स मोर देन 50. तो अब हमें ये नहीं पता कि जो 7 स्टूडेंट हैं उनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से 60 हैं, या 60 से 70 हैं, या 70 to 80 हैं. वी डोंट नो. ये ओपन है. इस केस में जहां पे ओपन सीरीज होती है, इस केस में हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेंज के क्या होता है फॉर्मूला? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. और हाईएस्ट वैल्यू इस केस में मार्क्स पे फोकस करते हैं, नॉट फ्रीक्वेंसी. तो हाईएस्ट वैल्यू मार्क्स तो हमें पता ही नहीं. मोर देन 50 मतलब 60 की, 70 की, 80 की, 90, मे बी, नेवर नो. इसी तरह से लीस्ट वैल्यू, तो हमें तो लीस्ट वैल्यू पता ही नहीं है. 0 भी हो सकती है, कहीं अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो माइनस भी हो सकती है, नेवर नो. तो हमें ना लीस्ट वैल्यू पता है ना हाईएस्ट वैल्यू पता है. ऐसे ओपन केसेस में, ओपन सीरीज में, ओपन डेटा में हम रेंज नहीं निकाल सकते. Second, it cannot be calculated in the case, yes, second. Third, range is significantly affected by fluctuation of sampling. Yes, sample to sample range vary करेगी.
एक बार आप क्लास में गए, 5 स्टूडेंट से आपने मार्क्स पूछे अंदाज नहीं के लिए कि हाँ, ये क्लास क्या टॉपर्स की है या एवरेज की है। इस केस में हमने पूछ लिया, हमने पूछा हाँ भाई, स्टूडेंट से पूछा कि ओके व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स गॉन इन दिस क्लास? तो 5 स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने कहा हाईएस्ट इज लाइक 98, लोएस्ट वाले ने कहा 48, आपने रेंज निकाल ली। ओके फाइन इनफ। अब नेक्स्ट टाइम गए, ये सैंपल इशू बता रहे हैं, सैंपल मीन्स जिससे हमने आंसर लिया, जिससे हमने रिस्पॉन्स लिया हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट टाइम गए, अब हमने उन 2 स्टूडेंट से नहीं पूछा, एनी अदर एनी डिफरेंट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को थोड़ा आइडिया नहीं था 98, उसने बोला 88 है हाईएस्ट मोस्ट प्रोबेबली मैडम एंड लोएस्ट इज समवेयर अराउंड 48। सैंपल इशू हो गया। जो रिप्लाई कर रहा है वो हमारा सैंपल है, वो डिफर कर रहा है। एक सैंपल डिफरेंट आंसर दे रहा है, एक सैंपल डिफरेंट आंसर दे रहा है, दोनों केस में सैंपलिंग का इशू है। सैंपल से सैंपल रेंज वेरी कर रही है। पहले 98 और 48 का डिफरेंस आ रहा था, अब स्टूडेंट ने 88 बोल दिया, 88 और 48 का डिफरेंस है, रेंज वेरी करेगा, तो सैंपल हैज टू बी ट्रू सैंपल। इफ द सैंपल डिफर, रेंज विल डिफर। नाउ considering this range, now come to QD। रेंज के बाद हमने क्या पढ़ा था? क्वार्टाइल डाइविएशन। क्वार्टाइल डाइविएशन क्या होते हैं? जहां पे Q3 और Q1 का डिफरेंस होता है। Q3 क्या है? Q3 है नीचे जो सेकेंड हाफ है उसका सेंट्रल पॉइंट। Q1 क्या है? फर्स्ट हाफ का सेंट्रल पॉइंट। तो Q3 माइनस Q1 जो डेविएशन होता है, डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, दैट इज क्वार्टाइल डाइविएशन। उसके मेरिट्स क्या है? फर्स्ट, it is quite easy to calculate and simple to understand. Yes, Q3 minus Q1 divided by 2, it's okay, but it is a bit tougher than range, but it is more simpler than MD and SD. Second, it can be used even in the case of open and distribution। जहां पे रेंज फेल हो रहा था, यहाँ पे हम QD लगा सकते हैं, क्योंकि Q1 और Q3 कहाँ से निकलेंगे? Q1 Q3 फर्स्ट और लास्ट से कभी नहीं निकलते। Q1 मीन्स एक सिंपल लॉजिक भी एक डे टू डे इसमें देखें तो पूरे डेटा को फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में डिवाइड कर, पूरे डेटा को, अरेंज्ड डेटा को, रिमेंबर को, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ का सेंट्रल पॉइंट Q1 होता है, सेंट्रल पॉइंट मतलब मीडियन भी बोल सकते हैं, मिडिल वैल्यू आई कैन से, इट्स अ सेंट्रल वैल्यू। ओके, लेट्स से सेंट्रल वैल्यू इज Q1। इस सेकेंड हाफ का सेंट्रल वैल्यू विल बी Q3। ये इट्स लेमन लैंग्वेज में हम समझाया, फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एवरीथिंग वी नो। थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में कि किसी भी डेटा को अरेंज कर दें हम असेंडिंग ऑर्डर में, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दें, और जो 2 भाग में डिवाइड करता है वो कौन होता है? मीडियन। इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या करता है? 2 भाग में डिवाइड करता है डेटा को, फर्स्ट हाफ, लेटर हाफ। ये इस मीडियन से सारे छोटे हैं, ये मीडियन से सारे बड़े हैं। तो फर्स्ट हाफ का जो सेंट्रल नंबर होता है वो Q1 है, सेकेंड हाफ का जो सेंट्रल नंबर है वो Q3 है। तो Q1 और Q3 कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं मिलेंगे, वो हमेशा बीच में कहीं मिलेंगे। तो बीच में तो वो दे रखा है, ये दे रखे हैं, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट ओपन एंड है, ओपन एंड सीरीज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा Q3 और Q1 निकालने में, इसलिए हम Q1 और QD ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। Third, it is less affected by the extreme value, so it is better than range. It is less affected by extreme value means if extreme values are, let's say, one of I have added in as it was there in the example last, height। height के examples में सारी heights okay थी, 5.2, 4.8 लाइन, but एक last में 6.2 हमने ऐड कर दी। In that case, extreme value मतलब last में 6.2 ऐड हुई, बट Q1 Q3 पे असर नहीं होगा, क्योंकि Q1 Q3 इज अगेन द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाफ, मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड हाफ। एंड में अगर एक एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है या बहुत छोटी ऊपर आ रही है, तो Q1 और Q3 ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी, सो इट इज नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट, it is more beneficial, I mean it is more applicable when we have to find out the dispersion in the central 50% of the data। Remember, Q1 middle of the first half, Q3 middle of the second half। When I say middle of the first half and say middle of the second half, what is the percentage of the data between these two middles? It's 50%, yes। ये 50% था, उसका सेंट्रल क्या होगा? ऊपर का 25%, नीचे का 25%, राइट? दिस इज अ फर्स्ट हाफ 50%, उसके ऊपर अबव इज 25%, लोअर इज 25%। ये सेंट्रल वैल्यू है सेकेंड हाफ का, इसके भी ऊपर 25%, इसके भी 25%।
25%, here 25%. So from here to here, look at here, 25 plus 25, 50%. Normally भी देख सकते हैं Q1 से Q3, फर्स्ट हाफ का सेंट्रल, सेकेंड हाफ का सेंट्रल, दोनों के बीच में 50% डेटा लाई करता है. तो जब हमें स्पेसिफिकली हमारी कहीं कंडीशंस होती है, स्पेसिफिकली वी आर इन रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट द डिस्पर्शन बिटवीन द central 50% data, in that case quartile division is the most applicable method. Now if it has so many merits, then it must be having some demerits also. So demerits are, first, again it is not based on all the observations. Why? क्योंकि positional average, positional है ना, position से बड़ा फर्क पड़ता है कि कौन से position. Remember the formula of position, Q1 का क्या है, n plus 1/4 या n/4, वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज है या आपका कंटिन्यूस सीरीज है. Q3 क्या होता है, 3n plus 1/4 पोजीशन या 3n/4 पोजीशन. तो उस पोजीशन पे जो भी खड़ा होगा उसकी जो वैल्यू है वो Q1 और Q3 बन रही है. बाकी ऊपर और नीचे की वैल्यूज क्या है उनसे उनको कोई मैटर नहीं करता. Quartile divisions uses quartiles. Quartiles they are based on position. They are called positional average. That has been covered in chapter 1. You can just refer chapter 1 just to brush it up once again. Why I am calling quartile division as a position based method. बिकॉज ये पोजिशन बेस्ड मेथड है, तो अगर आपने किसी भी पोजिशन पे खड़ी हुई वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी है तो उसके आगे और पीछे की वैल्यूज की कोई उसकी इंक्लूजन नहीं है फॉर्मूले में. सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. नाउ इट इज नॉट केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यस, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स मींस कोरिलेशन, रिग्रेशन या मॉडलिंग में कहीं भी क्वार्टाइल डाइविएशन का इस्तेमाल नहीं होता. नो फॉर्मूला यूजेस QT. And last, it is not regarded as the most reliable measure of dispersion because of 50%, because it ignores 50%. जो चीज इन्होंने यहाँ बेनिफिट में बोली कि सेंट्रल 50% के डिस्पर्शन को बताता है, तो ऊपर का 25% और नीचे की 25% को वो इग्नोर करता है. दिस इज द डीमेरिट. ये मेरिट में लिया हमने कि हमें 50% के डिस्पर्शन को अगर किसी को पता लगाना है तो बेस्ट मेथड है. बट अगर 25 अबाउट 25 नीचे के डेटा को आपने इग्नोर कर दिया तो इसका डिमेरिट हो गया. इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द फर्स्ट 25 एंड द लास्ट 25% ऑब्जर्वेशन इनटू स्टडी. सो दिस बिकम्स इट्स डिमेरिट. Now, okay, fine. This is about quartile division. Next comes the mean deviation. What is about the mean deviation? Mean deviation, the merit includes that it is based on all the observations. Why? Why? Because mean deviation uses mean. Mean means sum of all the values divided by number. When you say sum of all the values means yes, all the observations are taken into consideration. सम अगर सारी ऑब्जर्वेशंस का जोड़ डिवाइडेड बाय नंबर कर रहे हो मीन निकालने के लिए और वो मीन यूज हो रहा है मीन डेविएशन में, इसका मतलब है सारे ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस दी गई है, सारे ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेशन में इंक्लूड किया है. तो फर्स्ट मेरिट इज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज एंड नॉट ओनली ऑन द सर्टेन वैल्यूज लाइक रेंज एंड QD. Second important point, merit. It is simple to calculate and easy to understand. Not that simple, not easy as it was there in the range, but yes, it is easy than the SD. It's okay. It is not much affected by extreme values. Yes, it is not affected by extreme value means in ये फॉर्मूले में आप इस फॉर्मूले में जब एवरेज निकालते हैं हम, तो एवरेज निकालते वक्त अगर एक वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो एवरेज थोड़ा सा शिफ्ट होता है, या बहुत बड़ी वैल्यू अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो एवरेज थोड़ा हायर एंड की तरफ शिफ्ट होता है. रेंज की तरह नहीं होता कि अगर आपने सारी वैल्यूज तो छोटी 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 है, एक सिंगल वैल्यू ने रेंज का टोटल H-L बड़ा कर दिया. नॉट लाइक दैट. तो क्योंकि मीन पर बेस्ड है, एक्सट्रीम वैल्यूज मीन को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, इसलिए एमडी को भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करती. नेक्स्ट, मेरिट. For calculating the mean deviation, deviations can be taken from any average. Yes, we have this benefit. When we go and calculate mean deviation, we have an option of calculating mean deviation from mean, from median, from mode. All the three tools can be used for calculating MD. Demerits क्या है? Demerit, सबसे पहला demerit जिसके कारण MD को हटा के SD पढ़ा हमने, mean deviation हटा के standard deviation पढ़ने का कारण, वही इसका demerit हो गया. क्या था? नेगेटिव साइंस को इग्नोर करते हैं यूजिंग द सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट. व्हेन आई से एब्सोल्यूट मींस मॉडुलस. हम इसका डायरेक्शन छोड़ के सिर्फ
हम इसकी वैल्यू को ही यूज करते हैं, नेगेटिव साइंस हम अपने आप से ही इग्नोर कर देते हैं. Remember what we used to do when we used to calculate the x minus x mean, जिसे हम denote करते हैं d से. After doing this, remember straight lines mod, we used to do this value. Whenever the mod of minus 20 is taken, you get output 20. You know, sign is removed, only magnitude is considered, direction is removed. So this is deliberately you are ignoring the sign. So it is a demerit. This is the reason why standard deviation was introduced. So this is the demerit. Second demerit, it is not capable of further mathematical treatment. What does it mean? It means not capable of further mathematical treatment. Which mathematical treatment? Regression, correlation, again same thing. फर्दर जो हमारे आगे के मैथमेटिकल टूल्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं कोरिलेशन के, रिग्रेशन के, टाइम सीरीज डेटा होगा, स्ट्रक्चरेशन मॉडलिंग होगा, इसमें कहीं भी एमडी का इस्तेमाल नहीं होता. इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट व्हेन द मीन और मीडियन इज इन फ्रैक्शन. यस, दिस इज द केस व्हिच वी हैव डन इट. इसी कारण से हमने क्या पढ़ा है, हमने एज्यूम्ड मीन फॉर्मूला पढ़ा है. किस रीजन से? क्योंकि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, या इस केस में मीडियन या मोड, नॉट मोड, मीडियन या मीन कैलकुलेट करते टाइम आंसर आपका डेसिमल्स में आ सकता है, 16.818 एज वी डिड इन वन एग्जांपल. अब जब कैलकुलेशन आपकी 16.8182 ऐसा मीन या मीडियन आएगा, तब आपकी कैलकुलेशन से टफ होंगी, क्योंकि फॉर्मूले में तो मीन और मीडियन को ही कंसिडर किया हुआ है. बट इसका सोल्यूशन है कि वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एज्यूम्ड मीन, बट बेसिकली दिस फ्लॉ इज देयर विद द एमडी. तो मीन डेविएशंस के demerits. So we go through the points and you will have every point should be supported with some logic or some numerical